پہلی یہ کمیٹی ہے FPCCI کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں میں نے یہ انٹروڈکشن کرانے کی وجہ تھی کہ اس میں ڈفکل ایریا بھی موجود ہے، اس میں آباد بھی موجود ہے، اس میں کراچی چیمبر بھی موجود ہے، اس میں اور کراچی ریلٹرز بھی موجود ہیں، اس میں فیڈریشن آف پاکستان ریلٹرز ایسوسیشن بھی موجود ہے، اس میں بحریہ بھی موجود ہے، بحریہ ٹاؤن ڈیلر ایسوسیشن بھی موجود ہے، رائل پورٹ میں ہے۔ اس نے مجھے فون کیا کہ ادھر رہنے کا فون، تو اس نے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا، کوئی بحریہ کا ٹول ٹیکس کا معاملہ ہے، وہ ڈیزالو مطلب حل ہو گیا ہے، اس نے کورٹ نے اس کو ختم کر دیا ٹول ٹیکس، تو وہ اس نے ابھی فون کیا تھا کہ وہ کوشش کرے گا پہنچے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ چونکہ FPCCI مدر ہے پورے پاکستان کی صنعت و تجارت کی، اور جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جو بھی ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے، اس کی جو ماں ہے پاکستان کی، ہم سمجھتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے۔ ہمارے تمام ادارے، یعنی جن اداروں سے میں آباد کا فارمر چیئرمین رہ چکا ہوں سندھ بلوچستان ریجن میں، اور اس وقت بھی میں ہیڈ لا اینڈ آرڈر اینٹی انکروچمنٹ کا آباد کا اور CEC کا ممبر بھی ہوں، اور کئی سال میں رہا ہوں۔ تو یہ جو ہمارا جو ہم نے آپ کو انٹروڈکشن دیا کہ ہم جس بھی ادارے سے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن میں جب ہم آتے ہیں تو یہ ہے مدر باڈی، اور اس کو ہم چاہ رہے تھے، یعنی بڑے سالوں سے ہماری خواہش تھی میرا کہ ہم فیڈریشن کو اس سیکٹر میں، کیونکہ یہ سیکنڈ لارجسٹ سیکٹر ہے جو نہ صرف جاب پرووائڈر ہے بلکہ اسکل نان اسکل لیبر کو جو یہ جاب پرووائڈر ہے، بلکہ ایک آپ سمجھے کہ جو ابھی سرپرائز دیا اسٹاک ایکسچینج نے۔ آنیسٹلی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ میں اگر ہمیں موقع ملتا، جس دن یہ پیکیج آیا تھا، میں چیئرمین تھا ہاؤسنگ کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ کراچی چیمبر آف کامرس، اور اسی دن ہم میڈیا پہ گئے تھے، اور میڈیا پہ آ کے ہم نے یہ نشاندہی کی تھی کہ یہ جو آپ نے 6 ماہ کا انیشلی 6 ماہ دیا تھا انہوں نے اس کو MNST کو، تو ہم میڈیا پہ جا کے ہمارے پریزیڈنٹ تھے جب جنید صاحب، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، سندھ میں یہ کامیاب نہیں ہوگا، اور جس سیکٹر کی آپ بات یا جس ورٹیکل کو چلانے کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ویژن ہے عمران خان صاحب کا کہ ورٹیکل چلنی چاہیے، زمین کو کم سے کم استعمال کریں، تو اس میں 18 مہینے لگتے ہیں ہمیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز میں، جو NOCs کلیکٹ کرنے کے بعد ہم نقشہ اپروول کرتے ہیں، اور آج میں سرپرائزلی آپ کو یہ بتا دوں کہ 19 نقشے اپروول ہوئے ہیں، جس دن سے پہلی مرتبہ مارچ 2020 میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 30 سے 45 دن میں یہ NOC انشور کریں گے، تو آج تک 19 نقشے انہوں نے اپروو کیے، یعنی اس سے پچھلے سال کی اگر پرفارمنس دیکھیں گے تو 200-250 نقشے تھے، لیکن اس اعلان کے بعد 19 ہو گئے وہ۔ تو یہ جو بھی ہرڈلز ہیں، ہم نے پہلے دن کراچی چیمبر کے پلیٹ فارم سے عمران خان کو لکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو آپ کیوں، اچھا اس میں ایک کیا سب سے بڑا فیکٹر کیا تھا جو ہم سمجھتے تھے، اس وقت میاں صاحب آپ کے ساتھ یہ کوئی خالی جگہ ہم نے فل نہیں کی ہے، یہ فل ان دا بلینکس نہیں ہے، یہ اوریجنل ریئل اسٹیٹ ہولڈر ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو 20 سال 25 سال 10 سال یہ تمام ایسوسیشنز کو اپنے طور پہ اپنی نمائندگی کرتے رہے، اور میرٹ پہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ میں نے پھر یہ کہا کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم یہاں پہ 250 لوگ یہاں پہ ہم پہلی میٹنگ چیمبر کی پہلی میٹنگ میں 250-300 لوگ تھے سر، میں اصل پہلی میٹنگ میں چیمبر کی ہاؤسنگ ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن کی، اور جب ہم الیکٹ ہوئے تھے جنید بھائی ہم الیکشن لڑے تھے، ہم الیکشن جیت کے آئے تھے، تو اس سے پہلے کراچی چیمبر میں ہاؤسنگ ریل اسٹیٹ سیکٹر نہیں تھا۔ سراج بھائی نے جب میں الیکٹ ہو کے آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہاں ہیڈ کرو اس کی، اور میں سیکٹر کا اضافہ کر رہا ہوں، 17 سیکٹر تھے کراچی چیمبر میں، 18واں سیکٹر کا اضافہ کیا گیا ہاؤسنگ ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن کا، جس کا میں پہلا چیئرمین بنا، اور 2 سال تک میں ایز اے چیئرمین کام کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ سراج بھائی کی مغفرت کرے جب تک وہ حیات تھے۔ تو آپ یقین کریں کہ جب ہم نے نیشنل میڈیا پہ جب 20-22 پروگرام ایسے کیے کرنٹ افیئرس کے اس کے، اور جب ہم نے یہ پروگرام کیے تو ہمیں بہت پریشر، مجھے ذاتی طور پہ پریشر ملا کہ آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے سب اچھا ہے۔ میں آنیسٹلی بتاؤں، مجھے فون ہے کہ آپ کو جب بھی میڈیا آئے گا آپ نے کہنا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ آپ نے اچھا ہوا ہمیں جگا دیا، ہم تھوڑے سو رہے تھے، تو ہم جب اس وقت سو رہے تھے لیکن آپ نے ہمیں جگا دیا، اب ہم بتائیں گے کہ کیا اچھا ہے، اور ہم نے یہی کیا گواہ ہیں، ہمارے میڈیا پہ انٹرویوز گواہ ہیں، ریکارڈڈ ہے وہ، مطلب ایسا نہیں کہ میں کوئی خواب دکھا رہا ہوں یا میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں، وہ انٹرویوز موجود ہیں جس میں ہم نے کہا کہ یہ سندھ میں کام نہیں کرے گا، اس سے سندھ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا سیکٹر جو تھا ہائی رائز کا وہ کراچی تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ بہت اچھی بات ہے، چونکہ ہم FPCCI کے پلیٹ فارم پہ ہیں، تمام صوبوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے، ہماری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے۔ جو مواقع لاہور میں ہیں، جو مواقع پشاور میں ہیں، وہ کراچی میں بھی ملنے چاہیے، ہم نے کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کی، اور چونکہ فیڈریشن آف پاکستان پورے پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے تو ہم وہ گائیڈ لائن ان کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ لاہور میں، یہ ہماری گائیڈ لائن تھی، لاہور میں پرائیویٹ سیکٹر سے بندہ لیا گیا NDA کے اندر
जिससे 30 से 45 दिन में वो एनओसीज जो है उनको मिलना शुरू हो गई। 200-250 प्रोजेक्ट अभी तक वो अप्रूव कर चुके हैं। उस पैकेज के बाद 250 प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं। ये वो इदारा है जो जस्ट लाइक केडीए था, जिसकी कैपेसिटी नहीं थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की मॉनिटरिंग रेगुलेटरी कैपेसिटी है वो 19 पे आ गया और वो 250 पे चला गया। तो कहने की बात ये थी कि जब हमारी जो हमारी सजेशन लाहौर में हमने दी वो मंजूर हो गई, सिंध में मंजूर ना हुई, चाहे वो 18वीं तरमीम की वजह से, चाहे वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से। लेकिन हम चूंकि पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हम ताजिर लोग हैं, और हम हर उस आदमी की बात करने के लिए तैयार है, हर उस आदमी के लिए खड़े होने के लिए तैयार है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की और पाकिस्तान की भलाई की बात करेगा। हम उसके साथ हैं। और इसी को लेते हुए हमने इमरान खान का जो ये विजन था इसको हमने वेलकम किया था। और हम समझते थे, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने एक बात कही, जो इन्होंने अभी मीटिंग की और जो उन्होंने अपने तासुरात बताए, तो हम 24 साल से इस फील्ड में, तो हमें अंदाजा है कि ये क्या बात कर रहे हैं, और हमें अंदाजा है कि इमरान खान ने क्या बात की है। आबाद में ही वो आए थे पहली मरतबा जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और इनका ही विजन था कि ये हाउसिंग पॉलिसी, और मैं दाद देता हूँ इनको कि इन्होंने ये करके दिखाया। मैंने तो सुना है हमेशा कि इलेक्शन से पहले नारे लगाए जाते हैं कि हम आपके घर के बाहर दूध की पानी तो छोड़े, दूध की नहरें बहाएंगे, लेकिन उसके बाद पानी भी नहीं मिला। हमें जो पानी मिलता था वो भी गायब हो गया। मगर उसने इस सेक्टर में ये करके दिखाया। लेकिन इसको नाकाम होने की जो सबसे बड़ी वजह है, जो हमने असिस्ट की है एज ए चेयरमैन कराची चैम्बर, एज ए मुख्तलिफ कमेटीज, या जो भी आबाद में हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे साथियों का एक्सपीरियंस है, जो ये हमारे साथ शेयर करते हैं, जो डिस्कल एरिया है जो हमारे साथ शेयर करती है, तो हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही वजह है कि राइट जगह पे राइट पर्सन नहीं है। यानी हम समझते हैं कि अगर सिंध के लेवल पे भी उनके साथ अगर ऐसी मजबूत टीम होती जो रियल स्टेक में, स्टेट नहीं स्टेक की बात कर रहा हूँ, जो रियल स्टेक होल्डर होती, वो आपको बताती कि सुबह 9 बजे धूप कितनी होती है और रात 12 बजे जो है दर्जा हरारत क्या होता है, वो हम जानते हैं क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं। हम जब अपनी एग्जीक्यूटिव ऑफिस में जाते हैं तो हमारे, या हम अपने इदारों की ऑफिस में जाते हैं तो हमारे कुछ लोग हैं जो उनकी नजर हमारे जूतों पे होती है, तो हमारे जूते गंदे होते हैं, उस पर कीचड़ होता है, तो उनको लगता है कि ये इनको मैनर्स नहीं है, जबकि उनको पता नहीं है यही मैनर्स है। हम ग्राउंड में काम करते हैं, हम जब बेसमेंट की खुदाई होती है उसके लेआउट में मौजूद होते हैं, इसलिए हमारे जूते गंदे होते हैं। तो मैं फायदा ये उठाना चाहता हूँ, मियां साहब बैठे हुए, कि अभी आपको इंशाअल्लाह ताला आपने बड़ी हौसला अफजा बात की और हमें बड़ी मतलब एक हौसला मिला है जिस तरीके से आपने सेक्टर के हवाले से जो आपने अपनी नॉलेज भी शेयर की, कि अब हम ये चाहेंगे मुख्तसर ये कि हमारे इस सेक्टर की FPCCI मदर है सबकी, इसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान हाउसिंग बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए सर, उसमें FPCCI का नुमाइंदा होना चाहिए। और मैं आपको ये इस मुतालबे के साथ ये यकीन दिलाता हूँ कि ये खाली जगह पूर्ण करने वाले लोग नहीं है, ये रियल एस्टेट होल्डर हैं, इनको इस इंडस्ट्री के दुख और सुख सब पता है। और इसी तरह FPCA की जब हम बात करते हैं तो सिंध में अप्रूवल्स का प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक साल में एमनेस्टी के बाद तो ये फिगर्स होने चाहिए थे, स्टॉक एक्सचेंज को ब्रेक करता, लेकिन हम नाकाम हो गए, इसलिए कि जब आपने सुस्त रवि का शिकार किया तो हमने मीडिया पे मैंने सर ये बात की है, तमाम फॉरेन जो माशी आपके जो वो थे एडवाइजर हुकूमत के और जो करंट एडवाइजर थे हुकूमत के इस पे फाइनेंस के, उनकी मीटिंग में मैंने ये मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड बात की है कि आप जो ये एमनेस्टी देने जा रहे हैं, या जो आप एमनेस्टी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुखालफत की जो इमरान खान के मुखालिफ थे और कुछ लोगों ने उसकी हिमायत की जो इमरान खान के साथ थे। हम उन दोनों के साथ नहीं हैं, हम अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ हैं, हम अपनी ताजिर बिरादरी के साथ हैं। तो जिसने मुखालफत की उसको हमने ये कहा कि आप जिसको एमनेस्टी कहते हैं, ये एमनेस्टी हमारे लिए नहीं है, ये एमनेस्टी पाकिस्तान के लिए है। ये कोड किया गया है नेशनल मीडिया पे कि हम बात कर रहे हैं कि ये एमनेस्टी पाकिस्तान के लिए है, और ये उन लोगों को दी जा रही है जिनका पैसा डिक्लेयर्ड नहीं है, जिनकी सोर्स डिक्लेयर्ड नहीं है। हमें नहीं मिल रही, हम आबाद के लोग, हम चैम्बर के लोग, हम FPCCI के लोग, हम तो सारे टैक्स पेयर लोग हैं, हमारा सारा पैसा डिक्लेयर्ड है। तो हमने यही कहा कि वो एमनेस्टी दी जा रही है उन लोगों को जिनके पास डिक्लेयर्ड पैसा नहीं है, तो हमने वेलकम किया, इसलिए कि हमारी, जबकि होता ये है कि एक स्टील इंडस्ट्री वाला दूसरी स्टील इंडस्ट्री को अपने बराबर में जगह देते हुए सोचता है, लेकिन ये वाहिद सेक्टर था रियल एस्टेट हाउसिंग का जिसने इसको वेलकम किया कि जो भी लोग इस सेक्टर में आते हैं, जो भी सरमायाकारी करना चाहते हैं, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं।
हम उनको गाइडलाइन भी देने के लिए तैयार हैं और हम उनके साथ जॉइंट वेंचर वर्किंग रिलेशन पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि ब्लैक का पैसा हमारे पास नहीं है, ब्लैक का पैसा है इस उन लोगों के पास जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो हमने तो यहाँ तक कहा कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कि सिर्फ इस सेक्टर को क्यों सबको दे दें, जो भी सेक्टर रोजगार जनरेट कर सकता है, चाहे वो टेक्सटाइल का सेक्टर हो, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो ऑयल सेक्टर हो, इवन जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में रन करती है और अगर रोजगार जनरेट कर सकती है, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए वीवीआईपी हैं, ये हमारे लिए हमारे सर का ताज है जो इस मुल्क के लोगों को रोजगार दें। तो उन सब के लिए हमें ये करना चाहिए कि उनको भी दें 6 महीने 8 महीने के, वो अपनी एक्सपेंशन कर सकें। दूसरी बात ये कि सिंध में जब हमने बात की तो सब देखें एफपीसीसीआई की जब हम बात करते हैं तो ये पूरी अलाइड इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में रन कर रही है ये उसकी भी मांग है। और जब इमरान खान ने एक होप दिलाई कि यहाँ काम बढ़ जाएगा, तो सिंध में जैसे मैंने कहा 200 अप्रूवल होती थी तो हमें लगा 1000 अप्रूवल हो जाएगी, लेकिन वो 19 पे चली गई। तो हमारे जो लोग थे अलाइड इंडस्ट्री के, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को एक्सपेंशन किया, उनकी एक्सपेंशन हुई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन बजाय इसके कि वो बढ़ता उनका प्रोडक्शन वो भी नहीं रहा जो पिछले साल वो वर्स्ट पोजीशन में गुजार के आए थे। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि एफपीसीसीआई से बड़ा प्लेटफॉर्म, जैसे जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हम किसी हेयरिंग में जाते हैं तो हाई कोर्ट के जजेस हमें कहते हैं, हमारे ही सेक्टर के केसेस में हमें कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है लिहाजा हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही अली भाई गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप पीछे मिल रहे हैं तो वो आप लीगल के हेड है, अभी भी लीगल के एडवाइजर भी हो, पहले भी हेड रहे 3 साल 4 साल आबाद में। ऐसा ही होता है, अब हर हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट की मौजूद होते हैं जो आबाद जिसको हेयरिंग करती है उसमें हमें ये हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ सुनती है जी। अच्छा ये बात में करते हैं, तो ये जब हम जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई ऑर्डर नहीं है, इसी तरीके से सब चाहते हैं एफपीसीसीआई के ऑर्डर के बाद किसी का ऑर्डर ना हो। तमाम एसोसिएशनों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, तमाम को हम इंशाल्लाह अपने साथ मिला के लेके चलना चाहते हैं, तमाम लोगों से हम मुशावरत करना चाहते हैं, तमाम लोगों को हम इज्जत देते हैं, देते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस माँ को आज माँ का किरदार अदा करना, आज से सेक्टर में शुरू करना है। और अगर देखें हमारे पास बड़ी वैलिड टीम है, जब मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूँ ये पूरे पाकिस्तान लेवल पे काम करते हैं। ये रियल एस्टेट की जो वैल्यूएशन के हवाले से जो मामला थे पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा किरदार डिजिटल इंडिया का था। हमारी इस कमेटी में जुबैर बेग मेंबर है, मैंने खुद जो प्रेसिडेंट है डिजिटल इंडिया के वो इस कमेटी में मेंबर है। हमने दावा इसलिए दी थी, मैं आपको ये बता रहा हूँ डिजिटल इंडिया वालों सुन लेना, मैंने दावा इसलिए दी थी कि मैं चाहता था कि एक पहला इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर हम अपने जो बड़े जिस इदारे के हैं उनको अपने प्रोटोकॉल के तरीके से लाएं। राजा मजहर साहब हमारे मेंबर हैं, राजा साहब बहुत शुक्रिया, मैं वेलकम करता हूँ राजा मजहर साहब को। और मैं इसके हवाले से ये कहूँ कि ये जो डिजिटल इंडिया आज आप सुनते हैं, ये डिजिटल इंडिया की बात सुनते हैं या इस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ सुनते हैं, ये उसकी माँ है। तो अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, मैं नौरीन का भी शेर का भी मैं वेलकम करता हूँ। मियां साहब ये जो 2 फिगर हैं ये शहर में आप किसी भी हवाले से आप अगर उनके हवाले से पूछेंगे तो ये वो फिगर्स हैं शहर के कि जो आपको हर उनका इन्फ्लुएंस हर आपको फिल्म में नजर आएगा, इतना स्ट्रॉन्ग ये टीम है। अच्छा मैं जो ये सारी बातें की सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा था प्रेसिडेंट साहब कि आप जिस कमेटी के यानी जो आपकी एक सब कमेटी है जो स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन चूंकि आप तो सबसे टॉप पे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जैसे सबसे ऊपर है, ऐसे इस वक्त आप हमारे सबसे टॉप पर है, तो आपको सिर्फ एक तो ये बताना था कि इस वक्त जो आपके सामने लोग बैठे हैं ये ओरिजिनल लोग हैं। ये जो साबका जो मामला चलते रहे कई बाकी जगहों पे ये इस तरह नहीं है, ये सारे के सारे ओरिजिनल काम करने वाले लोग हैं। दूसरी बात ये कि हम चाहते हैं कि एफपीसीसीआई जो हमारे साथ जो नाइंसाफी पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी जो इशूज़ हैं एफएटीएफ के हवाले से जो इशूज़ हैं, एफएटीएफ पे हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि उसके हवाले से इन चीज़ों को आसान किया जाए ताकि ये लोग इनको अवेयरनेस भी हो और ये लोग उसका हिस्सा भी बन जाए। हमें कोई क्योंकि टैक्स पेयर लोग हैं, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज से अगर इब्तिदा कर दें, हर वो कमेटी पाकिस्तान की हो, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की हो, सूबों की हो या शहरों की हो, उसमें एफपीसीसीआई की नुमाइंदगी होना लाजमी होना चाहिए। और इसके लिए सर ये आप ही कर सकते हैं, आप और इसी तरह
जाए, जो बायलॉज कमेटीज हैं हमारी, उन बायलॉज कमेटी में भी मैं समझता हूँ कि हर कमेटी में जिस तरीके से मैं चेंबर में 2 साल रहा हूँ, तो कराची चेंबर जो सिंध की अगर हम बात करते हैं तो कराची चेंबर की बिल्डिंग कंट्रोल में भी उसकी सिग्नेचर ज़रूरी है, वैल्यूएशन लैंड वैल्यूएशन में भी ज़रूरी है और बाकी जगहों में भी ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि जो कि फेडरेशन तो माँ है सबकी, तो उसकी तो लाजमी होनी चाहिए, उसका नुमाइंदा लाजमी होना चाहिए। आज मैं हूँ इस स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन, कल कोई भी हो, तो मैं समझता हूँ कल कोई भी प्रेसिडेंट हो, तो ये आज हम रिवाइव डाल देते हैं कि अगर फेडरेशन की नहीं सुनोगे तो ये फिर मामला जो है नहीं चलेगा। इसलिए कि ताजिर का मतलब है जो एक माँ पैदा करती है, एक माँ फीड कराती है। ये ताजिर फीड कराते हैं इस कौम को, इस यहाँ के लोगों को, तो इनकी इज्जत होनी चाहिए, इनको इज्जत मिलनी चाहिए, इनको इज्जत देनी चाहिए। रही बात कि अगर उनकी भी कोई डिफिकल्टीज हैं, वो इदारों की कोई मुश्किलात हैं, हम आपके प्लेटफॉर्म से उनके साथ तमाम इश्यूज पे बैठने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। हम ये सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं कि आप सोच नहीं सकते कि सिंध आपको क्या सरप्राइज देगा अगर आप हमें फ्री हैंड दें, काम करने के लिए आसानियां करें, जो बायलॉज बनते हैं उसमें स्टेबिलिटी की गारंटी करें कि जो आज बायलॉज बनाएंगे 10 साल तक कम से कम उसको आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आती है, प्लॉट परचेज होता है, प्रपोज होता है, अप्रूवल होती है, 2 साल लगते हैं, 3 साल 4 साल उसको बनने में लगते हैं। उससे पहले अगर आप बायलॉज चेंज करेंगे लोग डूब जाएंगे। ये मैं समझता हूँ ये वो बम है जो हम जी नहीं सकते उसके बाद। तो आपको इस सेक्टर के लिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए बायलॉज की। और जहां तक हमने बात की कि जो कि 18वीं तरमीम है, मैंने सुना कई जगह पे, मैं गया काफी मीटिंग्स में, 18वीं तरमीम है, तो मैं समझता हूं कि आपको 18वीं तरमीम से पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए। आपको सूबों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। हम किसी सूबे के खिलाफ नहीं है, हम सिंध के रहने वाले हैं, सिंध से मोहब्बत करते हैं और हर उस बंदे का साथ काम करने के लिए तैयार है जो सिंध की बेहतरी के लिए, कराची की बेहतरी के लिए काम करता है। तो उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आपको मुश्किलात हैं तो हम अपनी खिदमत आपको पेश करने के लिए तैयार हैं। हर फोरम पे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और हम सिंध गवर्नमेंट को हम समझते हैं कि अगर उनको भी अगर इज्जत के साथ तरीके से ऑन बोर्ड लिया जाएगा तो वो भी हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और जो 250-300 प्रोजेक्ट हमारे रुके हुए हैं वो मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट का इशू नहीं है, वो किसी और वजह से रुके हुए हैं। तो फेडरेशन में हम आज यहाँ बैठे हैं तो हम चाहेंगे कि वो 200-250 प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं किसी भी वजह से, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बातें कुछ ऐसी है कि मैं वजह नहीं बता रहा हूँ, किसी भी वजह से रुके हुए हैं तो उसको हमसे अगर बात करें, हमसे कन्विंस हो जाए या हमें कन्विंस कर दें, हम तैयार हैं आपकी बात मानने के लिए। या आप ये करें कि हम कन्विंस हो जाए और हम कहें कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, या आप कहें कि हमने सही फरमाया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमने तो ये बड़ी वॉलंटरी आपको ये ऑफर की है। तो मैं 2-3 चीजें जो मैंने अभी बताई कि एक तो तमाम इदारों में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुस्तकिल बुनियादों पे होनी चाहिए, मेरी चेयरमैनशिप पे नहीं होनी चाहिए। मेरे बाद आने वाला भी इसी को फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह नजर आएगा। फेडरेशन की होनी चाहिए जी, एफपीसीसीआई नजर आएगा कि एफपीसीसीआई आज उस पोजीशन पे है कि अगर उसका नुमाइंदा शामिल नहीं है आप फैसले करने के हकदार नहीं हो। आपको हक होना चाहिए ताजिर बिरादरी के लिए। और अगर हम इस सेक्टर की बात करते हैं तो इस सेक्टर में आपको हक होना चाहिए उस सूरत में जब हमारे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे आपके साथ हो, क्योंकि फेडरेशन के नुमाइंदे का मतलब है कि तमाम एसोसिएशंस की नुमाइंदगी उसमें मौजूद है। आप उसमें डिफकल एरिया भी है, उसमें कराची चैम्बर भी है, उसमें आबाद भी है, बाकी जो और कराची रियल्टर्स हैं और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स हैं, उन सब की नुमाइंदगी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ इससे मजबूत राय, इससे मजबूत फैसला जब वो कहें कि एफपीसीसीआई ने उसको इंडोर्स किया है तो उसमें फिर कुछ कहने के लिए किसी के पास बाकी नहीं रहेगा। ये हुकूमत की भी सपोर्ट होगी, ये हमारी कौम की भी सपोर्ट होगी, हमारे सेक्टर की भी सपोर्ट होगी। और यही मैं फिर कहूँगा कि जो मामलात हैं हाउसिंग के हवाले से, मैं एक पॉइंट और से निशान नहीं कर दूँ, जैसे आप नदीम अनवर साहब के हवाले से, नदीम अनवर हैदर के हवाले से आपने जो बात बताई, तो मैं आपको उसमें एक बात ऐड कर दूं कि ये लो कास्ट हाउसिंग से ही शुरू हुआ, ये आबाद ने ही इनिशिएट किया, बड़ी मेहनत की उसमें। और फिर सारी चीजें जब हो गई तो उन्होंने कहा कि जी 27 लाख और 30 लाख का एक यूनिट है वो आप अगर प्रोवाइड करें, जिसमें उन्होंने सबको दावत दी, किसी को कहा आप जमीन ले लें, किसी को कहा आप अपनी जमीन दे दें, और 27 लाख में आप इंश्योर करें। तो जिस 30 अरब की इनिशियली बात की गई कि हम वो पैसा उन लोगों को दे देंगे, कि हम पहले होता ये था कि जब लोन
इंडिविजुअल को मिलती थी, बिल्डर को नहीं मिलती थी। लेकिन इस पैकेज में ये है कि अगर कोई पैकेज अप्रूव कराएगा तो उसको ये पैसा दिया जाएगा कि उसकी बुनियाद पे वो तामीरात करे, तामीरात का पैसा उसको दिया जाएगा। लेकिन मैं ये बड़ी अहम बात है, आखिरी बात है सर, मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ मुमकिन नहीं है कि जब लो कास्ट हाउसिंग की बात की जाती है उसके बाद से 35% प्राइसेस बढ़ चुकी हैं रॉ मटेरियल की। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि इस वक्त जो क्राइटेरिया है अप्रूवल का, आपसे सर मैं चाहूंगा कि ये मैं आपको, आप अगर इसमें राय भी दीजिएगा कि मैं इस वक्त उस जगह पे दादू के जंगल में जाके कोई प्रोजेक्ट दिखा के अप्रूव करा लूं। मैं दादू का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि इतना में कुछ नहीं होगा। जबकि कराची जब हम क्रॉस करते हैं मेमार या हम मेमार के बाद नॉर्दर्न जाते हैं तो उसके आगे कुछ नहीं है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। और वहीं पे बेशतर स्कीमें जब आने के लिए जा रही हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि शहर एक्सटेंड हो रहा है और हमारी चाहत है कि हम इस पॉकेट को एक्सटेंड करें। लेकिन हमें ये तशवीश भी है, खदशा भी है कि आप बाद में ये कहेंगे कि ये नाकाम हो गया। इसलिए नाकाम हो गया कि यूटिलिटी जो देना है वो हुकूमत, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। गैस नहीं मिलेगी, रोड नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो जब आप रोड नहीं देंगे, गैस नहीं देंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे, यूटिलिटी नहीं देंगे तो आप इस पैकेज को कैसे कामयाब करेंगे? न्यू सिटी बन ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए जा रहा है उसमें FPCCI के हवाले से हमें ये उनको निशानदेही भी करनी चाहिए। नुमाइंदगी तो हमने कह दी, निशानदेही भी करनी चाहिए कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप अप्रूव नहीं करेंगे जिसमें बाद में आपको ये कहना पड़े कि यहाँ पे गैस नहीं दे सकते, यहाँ पे बिजली नहीं दे सकते, यहाँ पे, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। इनको आप 10-10, 20-20 हज़ार का रेंट बचाने का आप कह के आप उनको लेके जा रहे हो इतना दूर, जहाँ से आने जाने का किराया जो है उनकी आधी सैलरी में खत्म हो जाएगा। तो आपको उन इलाकों से फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी लो कास्ट हाउसिंग की आपको मेंबरशिप देके फ्री ट्रांसपोर्टेशन उन मजदूरों को देनी पड़ेगी जो शहर में आना चाहते हैं या शहर में काम करना चाहते हैं। सिंगल पॉइंट बना के आप उनको ड्रॉप करें, उसके बाद वो कराची में कहीं भी जाएं। इसी तरह उनको स्कूल भी देने होंगे, उनको मसाजिद भी देनी होगी। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि हमने 27 लाख का आपको जो है फ्लैट दे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये खंडर बन जाएंगे, खंडर नहीं बनेंगे, क्रिमिनल लोगों की अमाजिका बनेगी और इन पे कब्जे होना शुरू हो जाएंगे जब ये आबाद नहीं होंगे। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।